मुझे इस बात का अंदाजा है कि काफी हमारे बिजी स्केड्यूल्स होते हैं, उसके अंदर वक्त निकालना, स्पेशली एक ऐसे टाइम पे जब आपको पता है कि नेक्स्ट डे इट्स बैक टू नॉर्मल रूटीन, इट डज बिकम डिफिकल्ट। बट हमारी बस अल्लाह ताला से दुआ ये है कि आज के सेशन में you're able to maybe get some answers that you're looking for, or that today's session is fruitful to you in some way, inshallah. ठीक है, तो यस, तो हम इसको शुरू करते हैं. So as you can see on the slide in front of you, the topic for today is boosting spirituality in busy schedules. इस नाम पे ही अगर आप गौर करें तो इसके अंदर हमने कुछ ऐसे कीवर्ड्स रखे हुए which basically give you the crux of what this session is going to be about, inshallah. The first word, boosting. Boosting is basically something which I feel that those individuals who have a busy schedule, namely those females who are working, or those girls or females who are going to university, उनके लिए अपनी इबादत या अपनी रिलीजियोसिटी को बूस्ट करना एक, मुझे ऐसा फील होता है, since I am also part of the same category, it is something which is of concern, and that's primarily because there's so much to do in the day that somewhere along the lines, religion or our deen or Islam, it ends up taking a back seat, if I'm not wrong. And यहाँ पे spirituality का word use करना भी इसलिए जरूरी था because we could have easily used the word religion, but the reason why we didn't include the word religion and the word spirituality was used is because spirituality is connected more to our heart and our connection with Allah Ta'ala, right? While we talk about religion, religion could also consist of acts or behaviors that we do which have become kind of routine for us. जैसे नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ते वक्त उस मोमेंट पे प्रेजेंट होना वो स्पिरिचुअलिटी है, और नमाज को अदा करना वो एलिमेंट ऑफ रिलीजन उसमें आ जाता है. तो हमारा फोकस आज ये है कि हाउ कैन वी बी मोर कनेक्टेड टू अल्लाह ताला इवन इन दोज इंस्टेंसेस, और इवन वेयर करंटली आवर लाइव्स आर क्वाइट बिजी. इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं जिनके लिए आज की टॉक इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगी. वन ऑफ देम इज बेसिकली दोज फीमेल्स हु आर वर्किंग, and the second is basically those females who are actually part of a full-time university. थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. So basically my name is Hafsa Khalid Ali and I am a clinical psychologist, and I've also completed the Darsa Nizami program, which is commonly known as the Alma degree. औरतों के लिए 6 साल की वो एक पूरा डिग्री प्रोग्राम होता है. So I've completed that, alhamdulillah. And what I do professionally is that I work as a clinical psychologist, where I provide therapy and I provide counseling to a variety of different clients who come to us. The kind of therapy that I practice is a bit different from secular psychology because the approach that I use is basically known as Islamically integrated psychotherapy, which is where we use Islamic interventions as a form of treatment and psychological interventions as well as a form of treatment. तो एक amalgamative approach होती है, उसको कोशिश पूरी होती है कि उसको उस तरीके से लेकर चले. I also teach psychology and sociology, and most part of my time and the day is spent either in taking sessions or having these workshops like the one we are having right now. So आज का भी जो session होगा उसमें आप देखेंगे there will be elements of both psychology and Islam, and how we can use both of these topics or both of these disciplines in order to be more spiritual in our busy routine. So is everybody here with me? हम फिर आज की टॉपिक की शुरुआत करें. मैं आप लोग को सजेस्ट ये करूंगी कि आप लोग अपने साथ एक कोई नोटबुक और एक पेंसिल या पेन अपने साथ रख लें,
ताकि आप भी साथ साथ जो है वो पॉइंटर्स नोट डाउन कर सकें. the more involved you are during the session, the more you will be able to get the most out of it, right? हम इंसान हैं, हम भूल जाते हैं, तो बेहतर ये होता है कि while you're taking the session you make pointers for yourself where you feel you can relate with things, inshallah. So we start off whenever we talk about spirituality, हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि हमारा दिल और हमारा दिमाग ये दोनों अल्लाह ताला से कनेक्टेड हो. Where we're referring to spirituality in Islam. Spirituality is basically where we say or we feel that whenever we are involved in any worship or any ibadah, we actually know what we're doing, we actually know what we're reciting, and we are actually able to feel that connection with Allah Ta'ala at that time. ये हमारी मुराद होती है जब हम कहते हैं कि we want to be more spiritual. अच्छा, स्पिरिचुअलिटी की बहुत सारे हम प्रैक्टिकल टिप्स पे जा सकते हैं जिस पे हम जाएंगे भी, लेकिन सबसे पहला स्टेप तो ये है कि the being with whom or the one with whom we want to have that connection with, which is Allah Ta'ala, क्या हम अल्लाह ताला को जानते भी हैं? That who is Allah Ta'ala? Yes, we've grown up and we know who Allah Subhanahu wa Ta'ala is. We know where this is how we've been brought up. हमने अल्लाह ताला का बचपन से सुना है. हमें हर काम करने से पहले, करने के बाद हमें बार बार अल्लाह ताला के बारे में बताया गया है. लेकिन मेरा आपसे फिर ये वाला सवाल है, डू वी एक्चुअली नो हु अल्लाह ताला इज और नॉट? अच्छा, इसका जवाब हमें कहाँ से मिलता है? इसका जवाब हमें मिलता है, इसको हम ना अरबी में या उर्दू में हम कहते हैं अल्लाह ताला की मार्फत होना, अल्लाह ताला को जानना, अल्लाह ताला को पहचानना. इसका जवाब या इसका आंसर हमें मिलता है when we study the 99 names of Allah Ta'ala. So maybe again बचपन से आपने अल्लाह ताला की 99 names सुने भी होंगे, आपने उनसे मे बी शायद आपको वो याद भी होंगे. आज के सेशन में, because it's not possible to discuss all the 99 names of Allah Ta'ala, I've just kind of handpicked 2 of them which are the most pertinent to the population who is basically attending this session today. थोड़ा सा अगर हम मैं आप लोग को सजेस्ट ये करूंगी कि सेशन के बाद अगर आप चाह रहे हैं कि आप जेन्युइनली सिंसियरिटी के साथ अपनी इबादत में इमर्ज हो, then my suggestion would be to get to know more about Allah Ta'ala by reading or by listening to different talks on the different names of Allah Ta'ala. थोड़े से हम अल्लाह ताला के नाम अगर हम देखते हैं, थोड़े से मैं अगर आपके साथ कुछ शेयर करूं, तो हम शुरू ऐसे करते हैं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. अभी जो एंड के मैंने 3 नाम, बेसिकली 4 नाम जो मैंने अभी आप लोग के सामने शेयर किए, अल वहाब, अल रज़ाक एंड अल फत्ताह, अगर देखा जाए तो ये तीनों नाम हमारे आज के सेशन के लिए बहुत पर्टिनेंट है. बिफोर मूविंग ऑन टू द नेम्स, आई वुड लाइक टू शेयर कि जिस पॉपुलेशन से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, अभी जो लोग अभी आज की टॉक जो सुन रहे हैं, उनके लिए 2-3 ऐसी नीड्स हैं जो प्राइमरीली हमारे दे आर द फोकस ऑफ आवर लाइफ. द फर्स्ट वन इज, हमें रिस्क की बहुत फिक्र है.
रिस्क से हमारी मुराद ये है कि we're concerned about finances, we're concerned about how to make ends meet, we're concerned कि घर के इखराजात किस तरीके से पूरे होंगे. I mean, that's the reason why a lot of, right? And when we're talking about female specifically, तो अगर हम इसका Islamic aspect देखें, so a female is working because of a few conditions. So the first one is there could be a female who is maybe single, who's not married, or she is maybe divorced, and she has to make her ends meet. So she has no choice but to work. एक हमारे पास एक इस्लामिकली हमारे पास एक ये वाला एक allowance मिला हुआ है for females to work. And the second is where a female is working, but she is working in a very Sharia compliant environment, female oriented setting है, females ही वहाँ पे होती हैं, तो वहाँ पे again उनके पास ही गुंजाइश है. So at the end of the day, the need for a female to even work is because we are concerned about risk. We are concerned about how to make ends meet. और इसी वजह से हम डे इन डे आउट इसी के फोकस पे होते हैं या इसी की तलाश में होते हैं. हम we're constantly worrying about how to make these ends meet. तो ये तो रिस्क है. और दूसरा जो हमारा कंसर्न होता है, और आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग को भी ऐसा फील होता है या नहीं, वो हमारा कंसर्न होता है अकॉम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट. यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई अगर कोई डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो हमारा फोकस ये होता है वी वांट टू डू बेटर. हमें अच्छा अचीव करना है, हमें अकॉम्प्लिशमेंट चाहिए होती हैं. हम चाहते हैं हमारी अच्छी से अच्छी जीपीए आए, हम चाहते हैं कि हमारी पोजीशन आए. वी वांट टू स्टडी, वी वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट थिंग्स. अच्छा, कोई ऐसी अगर फीमेल होंगी वो अगर पढ़ाई में उनको नहीं भी इतना दिलचस्पी होती होगी, लेकिन मे बी दे मोर टुवर्ड एक्स्ट्रा करिकुलर्स, वहां पे अचीवमेंट का फोकस होता है या वहां पे कहीं ना कहीं कोई अकॉम्प्लिशमेंट चाहिए होती है. सो वी वांट टू काइंड ऑफ रेज आवरसेल्फ, वी वांट टू अचीव समथिंग और द अदर. एंड सिर्फ वो फीमेल्स नहीं जो यूनिवर्सिटीज में हैं, बल्कि इवन दोज फीमेल्स हु वर्क, we do want some level of achievement or some level of accomplishment. तो हमारी कोशिश होती है कि हम फतह हासिल करें. We want to win, right? अगर मैं इसको पूरे को मैं अगर समराइज कर लूं, we want to win, we want to achieve, we want to outperform as compared to others. ये एक हमारे पीछे से एक ड्राइव बन जाती है. क्या आप लोग कहेंगे कि आप लोग की भी नीड्स या आप लोग के भी कंसर्न इसी के अराउंड ही घूमते हैं? क्या आप अपनी रिस्क के बारे में या तो फिक्रमंद होते हैं, या आपको ये होता है कि आपको अच्छा परफॉर्म करना है? क्या ये दोनों चीजें आप लोग की भी कंसर्न्स हैं? मोर और लेस, यस ऑफ कोर्स. इसके अंदर हम इसको और स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसको हम और स्पेसिफिक कर सकते हैं, बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो हमारी मेजर कंसर्न जो है वो ये दोनों चीजें. अच्छा, इंटरेस्टिंगली हमें फिर इसका जवाब, इसकी तसल्ली, इसका सोल्यूशन हमें फिर अल्लाह ताला के नामों में पता चलता है. That one of the names of Allah Ta'ala is Ar-Razzaq, and Ar-Razzaq means that he is the all provider. अच्छा, यहाँ पे all वर्ड की जरूरत भी नहीं थी, the provider भी हो सकता था, पर all provider means that Allah Ta'ala is the only one who has the power to provide us everything that we want. The word Razzaq comes from 3 alphabets जो Arabic हैं, Ra, Za and Qaf, और इन तीनों को जब मिलाया जाता है तो रिज्क, उर्दू में आप कह लें या अरबी में कह लें, इन इस वर्ड या इस लफ्ज का मतलब ये है कि हमें कुछ मिलना, ऐसी चीज मिलना जो हमारे लिए फायदेमंद हो, जिसके अंदर गिफ्ट के तौर पे भी मिल सकती है, लेकिन एक ऐसा गिफ्ट मिलना जिसकी हमें जरूरत भी है. मैं चाहत का वर्ड यूज नहीं कर रही, बल्कि मैं जरूरत की बात कर रही हूँ, मैं नीड्स की बात कर रही हूँ. कोई शेयर मिल जाना, कोई पोर्शन मिल जाना, कोई सब्सटेंस मिल जाना,
अच्छा, normally when we use the word risk, we limit it to things which are more material. Example देती हूँ मैं आपको. Risk commonly, या आप लोग चलें, आप लोग मुझे बताइए, रिस्क को कॉमनली किस वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता है? रिस्क के अंदर क्या आता है? फूड, मनी, नानफका, बिल्कुल. हेल्थ, वेरी गुड, ठीक है, ग्रेट. अच्छा, कॉमनली अगर देखा जाए तो मनी एंड फूड, इन दोनों को जो है कॉमनली शुमार किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड रिस्क. बट रिस्क इज सो मच मोर. रिस्क इज हैविंग एन abundance of friends. Risk is basically where you have people who are around to support you. Risk is basically where you have good health. Risk is basically where you are able to have respect. लोगों का आपको रिस्पेक्ट करना, वो भी एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है. लोगों का आपको पसंद करना, दैट अगेन इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. वालिदैन का होना, वो आपके लिए रिस्क है. Any blessings that are coming your way, all of those are part of this. The most beautiful thing is that Allah Ta'ala, one of Allah Ta'ala's name is Ar-Razzaq, which means Allah Ta'ala is the one who provides us with all of these blessings, which means if we want to have more of these blessings in our lives, we report straight to Allah Ta'ala. कहते हैं ना, कैसे आपकी कंपनी में कुछ होता है, आप कहते हैं भी आप इसको डायरेक्ट रिपोर्टिंग आपने जो है ना अपने इस वाले हेड से करनी है, या स्कूल में तो कहा जाता है आपने डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है ना वहाँ उन वाली मैडम से करनी है. यहाँ पे आपने डायरेक्ट रिपोर्टिंग अल्लाह ताला से करनी है. And when he is the one who has to provide you with all the blessings that you require in your life, all the needs basically, that means we ask him for it and we rely on him for it. अच्छा, ar-Razzaq से पहला वाला जो अल्लाह ताला के एक सिफात थी ना अल्लाह ताला की, वो थी अल-वहाब. वहाब का मतलब होता है गिफ्ट, the one who gives the most gifts. अच्छा, गिफ्ट्स का मतलब ये थोड़ी सी यहाँ पे एक ओवरलैप हो जाता है कि अर-रज़ाक में भी गिफ्ट का एलिमेंट आ रहा है, अल-वहाब में भी गिफ्ट का एलिमेंट आ रहा है. नहीं, स्लाइट डिफरेंस है. अल-वहाब इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ योर वांट्स, अर-रज़ाक इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ योर नीड्स. Allah Ta'ala is telling us, I can give you all of your wants and I can give you all of your needs. The second name is Al-Fattah. Al-Fattah again comes from the root letter Fa, Ta and Ha. Okay, Fa, Ta and Ha. And इसका मतलब होता है खुलना, to open. या इसको हम फताह को, अल-फताह से मुराद ये होती है कि जो है ना एक बुलंदी पर पहुंचना. And it has so many different meanings. So it means to be victorious, to be able to achieve, to be able to decide, to be able to open. So when Allah Ta'ala is telling us that he is Al-Fattah, he is telling us that he is the one who can open anything for us. तो जहाँ हम अचीवमेंट की बात करते हैं, जहाँ हम अकॉम्प्लिशमेंट की बात करते हैं, जहाँ हम विक्ट्री की बात करते हैं, तो अगेन हमारी डायरेक्ट रिपोर्टिंग is to Allah Ta'ala, that Allah Ta'ala, I want to be able to achieve. कि अल्लाह ताला मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ इस पोजीशन में चली जाऊँ, या अल्लाह ताला मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए आप दरवाजे खोल दें, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल दें. So these two concerns which are there at the back of our minds and which are there to kind of make us so busy in our schedules, in our routines, कि कहीं ना कहीं हम रिस्क और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं, और वो तलाश में हम जब परसूट में होते हैं ना, इंग्लिश का वर्ड हम यूज करते हैं इन परस्यूट. So in pursuit of these, of risk and of the opening of opportunities, we sometimes tend to forget that no, this is all that we have to ask from Allah Ta'ala. Yes, we make our efforts completely, totally, 100% agree. But we become so effort oriented that we end up believing कि सब कुछ जो है हम खुद कर सकते हैं,
एंड हम उसमें अल्लाह ताला से शायद उस तरीके से अपना कनेक्शन नहीं रख पाते। तो सबसे पहले हमने कहा हम पहले अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की सिफात को जाने। हम देखें कि जो दो हमारे कंसर्न्स हैं वो हमें डायरेक्टली रिपोर्ट तो अल्लाह ताला को ही करनी, which means that our primary focus needs to be on having a good connection with Allah Ta'ala. कैसे करें? You know, that's what this session is all about. How do we be more spiritual? The first thing we do is we start by stopping. अच्छा, ये बहुत पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट मैंने यहाँ डाल दी कि शुरुआत करें रुक कर, ये भी क्या अजीब सी बात हो गई. When I'm saying that you start by stopping, what I mean is whichever phase of your life you are in right now, maybe we need to take a step back and think why we started or why we joined this workplace, why we joined this degree program, why we wanted to get into this career in the first place. What was our intention? अच्छा, पहले तो आप ये देखते हैं कि मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाली मैंने डिग्री कंप्लीट की है तो मेरी नीयत क्या थी? क्या मेरी कोई नीयत थी भी? हो सकता है कोई कहे कि नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था, इस फील्ड में भी मैंने बस ऐसी काम शुरू कर दिया था, मेरी कोई नीयत ही नहीं थी. नो प्रॉब्लम, आप बना लें अपनी नीयत, आप अपनी इंटेंशन बना लें और फिर इससे अपने आप को ना थोड़ा और बैक ट्रैक करें. और अब आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो आपने दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ना कि मेरी नीयत क्या है, व्हाट्स माय रीजन, एंड देन आप स्पिरिचुअली देखें और आप कहें कि ओके, अल्लाह ताला का, यू नो, व्हाई डिड अल्लाह ताला सेंड मी डाउन ऑन दिस अर्थ, व्हाट्स द रीजन, एंड देयर यू हैव योर आंसर. कुरान की एक आयत है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, and I did not create the jinn and mankind except to worship me. There you go. आपको अल्लाह ताला ने आपकी प्रायोरिटी बता दी एंड बड़ी क्लियर वर्ड्स में बताई अल्लाह ताला ने. मतलब कोई इसमें कोई शक व शुबा नहीं है. आपको इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है बिकॉज आपने अल्लाह ताला की इबादत करनी है. तो इतना तो शायद हम सबको पता ही होता है या नहीं पता होता, ये भी हो सकता है. तो जब मैंने कहा ना कि वी स्टार्ट बाय स्टॉपिंग, हमें अपने आप को अल्लाह ताला से और करीब करना है. शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत इससे करें कि बैक ट्रैक हो जाएं और ये देखें कि व्हाट इज योर रीजन फॉर whichever place you are in right now, whether it's the dunya or whether you're in some phase of your life in this dunya. The main reason for why we were sent down on this earth is because Allah Ta'ala created us to worship Him. अब अल्लाह ताला की इबादत कैसे करनी है? अल्लाह ताला की इबादत दो तरीकों से, एक है आपके हुकूकुल्लाह और एक है आपके हुकूकुल इबाद. इन दोनों में भी कुछ आपके फराइज हैं और कुछ आपकी जो है वो वाजिब हैं, सुन्नत हैं, मुस्तहब हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. जब हम फराइज की बात करते हैं, so there is no question about it, the फराइज need to be done as they are. नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज ही है. 5 वक्त की नमाज पढ़ना हमारे लिए मैंडेटरी है. रोजा फर्ज है, रोजा रखना हमारे लिए मैंडेटरी है. ज़कात देना अगर उसके हम जो है हम दे सकते हैं तो वो ज़कात देना हमारे ऊपर मैंडेटरी है. हज अगर हमारे पास सब वसाइल हैं, हमारे लिए हज पे जाना मैंडेटरी है. तौहीद मैंडेटरी. ऑल ऑफ दीज आर फराइज, राइट. होता क्या है कि कभी कभार हमें ये फराइज करने में ही मुश्किल हो रही होती है. We're so busy that ये भी हो सकता है कि किसी की कुछ नमाजें कज़ा हो जाती हैं या कोई नमाज नहीं पढ़ पाता, या ये भी हो सकता है कि हम अपनी रिस्क की इतनी फिक्रमंद होते हैं कि शायद हम उसमें से ज़कात अदा नहीं कर रहे. तो सबसे पहले तो अपने आप को जांचना और ये चेक करना कि मैं कितने फराइज इनमें से कर रही हूँ. फिर हम आते हैं हुकूकुल्लाह की. हमने बात की कि उसके फराइज. हुकूकुल इबाद. हुकूकुल इबाद इज आवर रिलेशनशिप्स विद अदर्स. When we talk about worshipping Allah Ta'ala, अल्लाह ताला की इबादत करना, ये इबादत का वर्ड बहुत वास्ट है. फराइज तो मैंडेटरी हैं जो हमें करने, लेकिन फराइज के अलावा every individual has a different way of obeying Allah Ta'ala. Now this might sound like a very different statement, but I'll clarify it.
So I am a clinical psychologist. People come to me if they're looking for, if they're going through any problem in their life, कोई मुश्किल वक्त के थ्रू गुजर रहे हैं, वो हमारे पास आते हैं, हमारे पास वो सेशंस लेते हैं. नीयत हमारी ये होती है कि जब हम लोगों की हेल्प करते हैं तो ये भी एक तरीका है जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाता है. तो एट द एंड ऑफ द डे हमें अपनी नीयत इस तरीके से बनानी है that we are doing what Allah Ta'ala wants us to do. There could be somebody who's listening to this talk and they're teaching somewhere. किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं. देखा जाए तो दुनियावी काम है स्कूल में पढ़ाना, लेकिन वो ये नियत कर लेती हैं कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और मेरी नियत ये है कि जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मैं उनकी तरबियत में एक रोल प्ले कर सकूं ताकि वो एक अच्छे मुसलमान बन सके. There you go, you're on the right track. आपकी दोनों इंटेंशंस पूरी हो रही हैं, दीन की भी और दुनिया की भी. That you are in an essence doing something that Allah Ta'ala wants us to do, and that is the way through which we worship Allah Ta'ala. आपको पता है अगर आप अपनी नियत ही सही रख लें तो जो पूरा वक्त आप उस काम में गुजारते हैं, चाहे वो दुनियावी काम ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि आपकी नीयत अल्लाह ताला से कनेक्टेड थी, आपको उस पूरे दुनियावी काम में आपको सवाब मिलता है. एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि अभी मैं मर्दों का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मर्द के लिए माश, यू नो, बेसिकली फॉर अ मैन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फैमिलीज, राइट. तो माश कमाने के लिए उनको घर से बाहर निकलना है. अपेरेंटली सुबह जब वो जा रहे हैं और शाम के 5-6 बजे आ रहे हैं तो दुनियावी काम में होंगे, राइट. समबडी कुड बी अ कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट connected to deen or Islam at all. But if they're going every day with this niyat that ये मेरी एक ऐसी जिम्मेदारी है जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है और मैं उस जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ, उनका वो पूरा दिन इबादत में गुजरता है. बल्कि मर्दों के लिए तो ये कहा भी जाता है कि अगर वो माश के लिए जो है घर से बाहर निकलते हैं तो उनको इतना ही सवाब मिलता है जितना उन लोगों को जो कि जिहाद के लिए जाते हैं. So the point of explaining all of this is that our intention is the most important thing that we need to focus on. आपने एक दफा अपनी intention समझ ली, आपने purpose of life अपना समझ लिया, जैसे हमने लिखा था ना मैसेज में, the purpose of a Muslimah in light of Quran and Hadith. The purpose of a Muslimah is, or any Musliman for that matter, is to worship Allah Ta'ala. Now find your individual ways of connecting with Allah Ta'ala other than the farais. फिर हमारे पास hadith है, very common hadith, innamal a'malu binniyat. Your actions are judged by intentions. Your action might be completely dunyavi, but if your intention is deeni and if your intention is connected to Allah Ta'ala, you're getting complete sawab for it. हमें लगता है इंटेंशन अच्छा सही है, यू नो, ठीक है, हाँ ये भी है, हम इसको ट्राई करेंगे, राइट. हम इसको बड़ा कभी कभार ऑफ हैंडेडली लेते हैं, लेकिन वी डोंट रियलाइज दैट दिस इज द इजी सॉल्यूशन दैट अल्लाह ताला हैज गिवन अस, बिकॉज इट्स मच मोर पावरफुल देन वी थिंक. मुस्लिम में एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया that he who asks Allah Ta'ala for martyrdom, शहीद के किसी ने जो है अल्लाह ताला से कोई अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि अल्लाह ताला मुझे शहीद की मौत चाहिए, तो अल्लाह ताला उस इंसान को शहीद की ही मौत देंगे, इवन अगर वो अपने बिस्तर पे ही उसका इंतकाल होता है. जरूरी नहीं है कि वो जो है जिहाद के लिए गया हुआ हो. तो ये हदीस अगेन दिस काइंड ऑफ यू नो reiterates the fact that our intentions are the key ingredient which we need to have more of in our lives. And then we have this, you know, verse from the Quran. जिसमें अल्लाह ताला हमसे फरमाते हैं, indeed this is for you a reward and your effort has been appreciated. अच्छा, तो अब थोड़ा सा इसको मैं इंटेंशन से इसलिए लिंक कर रही हूँ कि हमारी दुनियावी अगर आप एस्पेक्ट देखें, अगर आप काम पे जाती हैं या आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, वहाँ पे फोकस का किस पे ज्यादा होता है? अकॉम्प्लिशमेंट पे होता है, कितना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हैं. बट देन the way Allah Ta'ala looks at us is basically how well we are able to make the effort,
how much effort are we putting into things. तो ये एफर्ट मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है बिकॉज आगे जाके हम इसी पे बात करेंगे कि एफर्ट क्यों जरूरी है, चाहे उसके हमें रिजल्ट्स नजर आए या हमें उसके रिजल्ट्स नजर नहीं आए. जहां तक कि हदीस है जो मैंने मुस्लिम की यहाँ पे मेंशन की है, दिस इज फॉर एनी अमल. मैं ये तो आपसे कह रही हूँ, इंटेंशन अगर आपकी सही है, आप उसके लिए कोई भी अमल कर रहे हो, चाहे वो दुनियावी ही क्यों ना हो, but because you had the right intention in mind, it's as if you would be spending that whole time in ibadat when you're doing that dunyavi kaam. But like I said, the most important thing is कि आपने अपनी intention क्या रखी है. अच्छा, पर्पस ऑफ अ मुस्लिम आज लाइफ की बात करते हैं ना हम, क्योंकि हमने कहा कि देखिए एक पर्पस तो हमें पता है, मेन पर्पस ये है that we have to worship Allah Ta'ala. As females, how do we do it, right? तो कुछ तरीके अल्लाह ताला ने हमारे लिए बयान किए हुए, that the main purpose, देखिए एक होता है गोल और एक होता है ऑब्जेक्टिव. गोल का मतलब होता है क्या मेरा मुझे अचीव क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे अचीव ये करना है कि मुझे अल्लाह ताला की इबादत करनी है. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो फॉर अ मुस्लिमा, her main primary purpose is basically that she is not married, she has to look after her parents. There is the number one priority, right? गोल की हमने बात कर ली, अब हम प्रायोरिटी की बात करें. The number one priority is parents, looking after them, उनके साथ एहसान करना, उनका शुक्र करना, उनको कंपनी देना, लेकिन उनको प्यार मोहब्बत काइंडनेस के साथ कंपनी देना, उनके लिए रहमत की दुआ मांगना अल्लाह ताला से, उनको जो है रिस्पेक्ट के वर्ड्स के साथ बुलाना. ठीक है, वो अगर कुछ हमें डांट दे, कोई बात कह दें तो उनको उफ नहीं कहना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, एरोगेंस उनकी तरफ शो नहीं करना. And similarly, if we're married and if we have kids, so the same applies to our kids as well, that with our kids we give them financial support. हमें उनकी तरबियत, financial support तो primarily वैसे father का role है, but as a mother, everything else is part of our responsibility, looking after them, making sure they're properly fed, looking after their physical needs, looking after their emotional needs. Of course, the father also has a role to play, but इसमें ज़्यादा अगर role है तो इसमें female का role है. And for a female who's married, again, her objective or her purpose or her priority is her husband. तो थोड़ा सा अगर हम अपनी प्रायोरिटी सेटिंग कर लें, उस हिसाब से हम प्रॉपरली चीजों को टाइम दे सकेंगे. So a woman's priority is not that she has to earn financially, but of course, if she is in a situation where she has to, she also needs to keep in mind that she has these other responsibilities and priorities as well. थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं and हम spirituality के main crux के ऊपर जाते हैं, right? इबादत में क्वांटिटी होनी चाहिए या इबादत में क्वालिटी होनी चाहिए? इज मोर ऑलवेज बेटर? क्या हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है, या हमें ये करना है कि शायद हमारी इबादत तो कम हो लेकिन कंसिस्टेंट हो और सिंसियरिटी के साथ हो? सो which one is it, right? जी, हमें कॉमनली नोशन हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इन ऑर्डर टू बी मोर क्लोजर टू अल्लाह ताला, आई नीड टू बी डूइंग मोर. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट्स रॉन्ग, दैट्स आल्सो राइट. अगर आप कर सकते हैं, बिल्कुल. अगर हमारे ये कि नहीं हम ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें, अगर हम ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें, हम ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ें, तहज्जुद भी उठें, आप उसमें बिल्कुल करें, वो आपकी क्वांटिटी है. लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे लिए क्वांटिटी करना मुझे मुश्किल लग रही है, मैं शुरू तो कर लेती हूँ लेकिन मैं उसको सस्टेन नहीं कर पाती. होता है ना कभी कभार अचानक से हमारे अंदर एक जोश आता है और हम एक दिन में हम सुबह हम दिन शुरू करते हैं तहज्जुद से, फिर फजर, फिर उसके बाद हम सोते नहीं है, हम काम पे जाते हैं, वहां पे भी बहुत कुरान पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं. एक दिन हो जाता है, 2 दिन भी हो जाते हैं, पर हम उसको लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं कर पाते. सो अनदर more realistic way through which we can kind of be more consistent is by focusing on the quality of our ibadat.
अल मुस्लिम की एक अहदीस है, अहुब्बुल अअमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन qalla. The deeds most beloved in the eyes of Allah Ta'ala are those deeds which are carried out with continuity, regularity, even though they may be small. तो शुरुआत करें, कम से करें, लेकिन ये सोच के करें कि अच्छा अब मुझे consistently करना है. For people who have busy schedules, this is the key. So today you decide कि आज आपने टॉक सुनी है, आप कहते हैं कल से मेरी कोशिश ये है कि मैं नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़ूं. ठीक है, गो अहेड. फिर अब आप उसी को अपना फोकस बनाएं and try to do as much of that as possible. एक और एग्जांपल, आप कहते हैं कि जो है ना मैंने आज, ठीक है ना, मुझे क्वालिटी अपनी सही करनी है, मैं ये करती हूँ कि मैं हर रोज का मैंने डिसाइड कर लिया है कि आई एम गोइंग टू बी गिविंग सम अमाउंट ऑफ सदका. बिल्कुल, बाय ऑल मींस गो अहेड. इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से अगर बताऊं ना, पहले हम थोड़े जो है ना डेली लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं. मल्टीविटामिन्स होते हैं, यू आर ऑल अवेयर, राइट? At some age, some point or the other, we do have to end up taking multivitamins. Multivitamins देते हुए डॉक्टर आपको क्या कहता है कि आपने एक दिन में 5 गोलियां खानी है या आपने 3 महीने लगातार हर रोज एक एक पिल लेनी है. Of course, the doctor says take one pill, but then take it regularly for the next 3 months or 6 months. Right? आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता है? No doctor says कि नहीं बस आप एक हफ्ते हर रोज 5-5 गोलियां अगर ले लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता. In order for that pill to work, we need to take it every day. हर रोज एक एक लेनी है. अच्छा, एक और एग्जांपल, एक्सरसाइज. जो लोग यहाँ पे who are fond of exercise, कभी अगर आप फिटनेस ट्रेनर से बात करें या आप अगर अपने आप को खुद भी थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में पढ़ लें, आप एक दिन 10 डिफरेंट एक्सरसाइज करने से आपका आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपका बनेगा, या आप रेगुलरली हर रोज 1 महीने तक एक्सरसाइज करेंगे तो फिर होगा. दो सेम 10 एक्सरसाइजेस अगर आप उसमें से कोई भी एक हर रोज कर लेंगे, that will lead to a difference rather than doing 10 exercises in just one day. So if you think about it, इसका मतलब है इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने यही वाला कानून हमें यही वाला मिलता है कि नहीं, एक वक्त में बहुत कुछ करने से जो है इतना फायदा नहीं होगा. बेहतर ये है कि कम करें लेकिन कंसिस्टेंटली करें. So we have two people, right? So we have person A and person B. What person A does is that this person gives maybe some amount of money every Monday. And then we have person B who gives less amount of money, but then he does it every single day. तो कौन सा इसमें ज्यादा फायदेमंद वाला हो? वो वाला हो जो हर रोज करता है. दिन दिन की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसको जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं, अल्लाह ताला उसको सवाब भी देते हैं, अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड भी देते हैं. So this goes to show that we need to first come to that conclusion that in our busy schedules, our focus needs to be more on continuity rather than quantity. अब आप इसको देख सकते हैं कि आपने इसको किस तरीके से लेकर चलना है. What is that one thing that you want to add in your normal routine which you feel that you haven't been doing for a long time? And it would be nice if you could share on the chat as well. कोई ऐसी इबादत, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि मैं चाहूंगी कि मेरी लाइफ में कंटिन्यूटी आए if I end up including this one thing. कौन सी वो एक चीज है जो आप इंक्लूड करना चाहते हैं which you can be consistent for as well? Okay, wuzu. So what about wuzu? Making wuzu before every namaz? Is that what you mean?
Okay, ठीक है, to be regular most time of the day. सही है. Anybody else? Any one act that you would like to include in your daily routine. ठीक है, सदका हो गया, तहज्जुद हो गया, सही है. दुआ मांगना after every नमाज, ठीक है, sounds nice. कुरान, अच्छा, if you're saying आपको कुरान को और इंक्लूड करना, आपको इसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने आप के साथ इस तरह करना पड़ता है. अब स्पेसिफिक में ये हाउ मेनी पेजेस, हाउ मेनी आयत. दुआ एंड इस्तिगफार बिफोर स्लीपिंग. ओके, ग्रेट. ठीक है. Anybody else? Okay, ठीक है. All of you are on the right track. अब आपने शुरू ऐसे करना है कि आपने एक चीज से स्टार्ट किया. अब now this is your vitamin dose for the next 1 month at least. Rather than focusing on doing a lot of things at the same time, आप इसको फोकस बना ले कि हर रोज आपने ये वाली एक चीज तो जरूर करनी है. अच्छा, रेक्टिफाइंग नमाज हमारी नेक्स्ट, we'll be talking more about that. नमाज, अगर तो आपका ये गोल है कि आपने कोई नमाज आपकी कज़ा हो जाती है और आपने उस नमाज को कंसिस्टेंट करना है, ओके ग्रेट, वो बहुत अच्छा, दैट्स मच नीडेड गोल, व्हिच इज मच नीडेड प्रायोरिटी व्हिच इज देयर. लेकिन रेक्टिफाई करना, now that is something different, और उस पर हम बात भी करेंगे. But अभी when we're talking about is more always better, would just like you to think of one thing that you would like to add in your daily busy routine which you want to make a habit for yourself. हम नमाज की तरफ आते हैं, right? नमाज के लिए सूरह मोमिनून की आयत है जिसकी ट्रांसलेशन ये है, सक्सेसफुल इंडीड आर द बिलीवर्स those who offer their prayers with all solemnity and full submissiveness. ठीक है, हम शायद in our busy schedules, in our hurriedness of life, in our focus on achievement and on risk, we tend to forget that actual success is for those who pray namaz. तो जरा सक्सेस को हम थोड़ा रीथिंक करते हैं. आप मुझे बताइए कि जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, क्या हमारा, मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करती हूँ, क्या हमारा फोकस उस वक्त नमाज पर से पर होता है या ये होता है जो सामने इस पिक्चर पे है, that all those things which are there going on in our mind, वो सब हमें नमाज में याद आ रही होती है. रात में खाने में क्या बनाना है, मुझे ऑफिस के बीच में आप दोहर पे आप नमाज पढ़ने गए, मुझे इसके नमाज के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, ठीक है, मुझे अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है, मुझे वापसी में घर जाते हुए ये चीजें पिक करनी है. We're actually kind of making a to-do list in our namaz. तो नमाज, अपनी नमाज को हम रेक्टिफाई कैसे करें, हम अपनी नमाज को सही कैसे करें? सबसे पहली चीज तो ये कि अपना थिंकिंग प्रोसेस नमाज के बारे में वापस से ऑन ट्रैक लेकर आना है कि नमाज पढ़ने का मतलब है that we are going to be successful inshallah. And that one thing where we know that we are going to be successful, क्या हम उसको इतने कैजुअली लेते हैं? जब स्कूल जाते थे आप और आपको पता था कि मेरे ये वाली चीज पढ़ने से मुझे इसमें फायदा हो जाएगा या मेरे इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्या आप उस सब्जेक्ट को लाइटली लेते हैं? नहीं, आप उसमें और अपना एफर्ट डालते हैं. यू मेक श्योर यू डू इट विद ऑल सिंसियरिटी. And namaz is the exact same thing because Allah Ta'ala has mentioned in the Quran that this is what success is. So rethinking success. Success is maybe not getting that position in your company or getting a very high pay or getting a 4 GPA in your university. Success is basically how well you are able to pray namaz and stand in front of Allah Ta'ala. और जब आप अल्लाह ताला के सामने सक्सेसफुल हो गए तो फिर तो आपके लिए
वही अल्लाह ताला जो है वो अर्रज़ाक़ भी हैं, वही अल्लाह ताला जो है वो अल फत्ताह भी हैं. So that means he will give you success in anything in your life. So rethinking success from this angle, that we are basically praying something which is connected to everything else that we are doing right now. Does that make sense? We move on कि अच्छे इसको करना कैसे. सबसे पहली चीज ये है कि अपने माइंडसेट को चेंज करना, अपने आप को राइट ट्रैक पर लेकर आना. दूसरा ये कि हम दुआ से शुरू करते हैं. और ये जो दुआ है जो आपके सामने यहाँ मेंशन की हुई है, ये वो दुआ है जो कि आप किसी भी ऐसी चीज के लिए, ऐसे काम, ऐसी चीज के लिए पढ़ सकते हैं जिसमें आपको मुश्किल लगती है. तो अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तहलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला. Oh Allah Ta'ala, there is nothing easy except what you make easy, and you make the difficult easy if it be your will. शुरू करते हैं हम इस दुआ से. ये दुआ सिर्फ स्पेसिफिक नमाज के लिए नहीं है, लेकिन ये दुआ जो है ये किसी भी ऐसे काम के लिए जिसमें आपको मुश्किल होती है. स्ट्रेटजीज क्या है? How do we make sure that we have a more mindful salah? When I use the word mindful, I don't mean this picture. ये भी mindful ही है, right? Because mind में तो बहुत कुछ चल रहा है. In true essence, mindful means being there in the present and knowing that you are praying to Allah Ta'ala. अच्छा, क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए? कुछ अगर हम ऑब्जेक्टिव इसके बनाए, तो फर्स्ट थिंग इज, एक होता है 5 सेकेंड रूल. ये इंग्लिश में या इंग्लिश की स्टोरीज में काफी यूज होता है. 5 सेकेंड रूल का मतलब ये होता है, वहां से हमने एनालॉजी हमने डिराइव की है. कोई चीज आपकी थी ऊपर और वो नीचे गिर गई, अगर आपने उसको 5 सेकेंड में उठा लिया तो वो चीज जो है वो नापाक नहीं हुई और वो चीज जो है वो साफ है. ये एक वेस्टर्न फिलोसफी है, एक वेस्टर्न आइडिया है. उस सेम 5 सेकेंड रूल को हम इसमें अप्लाई करते हैं. आपके माइंड में आया कि मुझे नमाज पढ़नी है, नया नमाज का वक्त हो गया है. यू गिव योरसेल्फ 5 सेकेंड्स टू गेट अप एंड गो इन प्रे. हम क्या करते हैं? हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. अच्छा हाँ, जोहर का वक्त है, अच्छा अभी तो बहुत टाइम है वक्त खत्म होने में, मैं अभी पढ़ लूंगी, अभी जाती हूँ मैं, हाँ अभी मैं थोड़ी देर बाद पढ़ती हूँ, अभी मैं बस ये वाला काम कर लूँ ना, फिर मैं नमाज पढ़ने जाती हूँ. This 5 second rule is what turns thought into action in 5 seconds. The thought came in your mind that, oh, you know, जोहर का वक्त हो गया या मुझे अजान की आवाज आ गई है. You have 5 seconds, and in those 5 seconds you get up and you go and you pray. सबसे पहली चीज तो ये. The second is you plan your day around your namaz or around your salah. हमारा डे प्लान ऐसे होता है कि मैं सुबह उठूंगी, फिर मैं ये करूंगी, फिर मुझे यूनिवर्सिटी जाना है या मुझे ऑफिस जाना है, उसके बाद फिर मैं वहां से वापस आऊंगी, फिर मुझे ये करना है, so on and so forth. When you plan your day around namaz or around salah, what you're doing is you're thinking, okay, once I get up and I pray फजर पढ़ के फिर मैं ये वाला काम करती हूँ. फिर दोपहर में जब मैं जोहर पढ़ लूंगी तो जोहर के बाद मैं अपनी वो मीटिंग स्केड्यूल कर लूंगी. असर पढ़ के फिर ऑफिस से निकल जाऊंगी ताकि घर पहुंचकर मैं मगरिब पढ़ लूँ, और फिर जो है खाने से पहले मैं कोशिश करूंगी कि मैं इशा पढ़ लूँ. This is how we plan our day around salah. That namaz comes first or salah comes first, and then we kind of you know, alter the plan in such a way कि उसके इर्द गिर्द हमारी दूसरी चीजें फॉल कर जाए. Having a salah mindset का मतलब ये है कि even in those moments when you're not praying namaz, maybe thinking about the benefits of namaz. हम ये कितना करते हैं? नमाज पढ़ नहीं रहे, लेकिन शायद फारिग वक्त है हमारा, बीच में कुछ हमें ब्रेक मिली और हम ये सोचे हाँ नमाज पढ़ने से तो है वो जो है ना, अल्लाह ताला ने तो हमें ये वाला रिवॉर्ड प्रॉमिस किया हुआ है, या नमाज पढ़ने से ये होगा कि जो है वो हमारे जितनी हम नमाज हम पढ़ते हैं तो उससे हमारे गुनाह माफ होते हैं, और हमें एडिशनल उससे सवाब मिल जाता है, या नमाज पढ़ने से मुझे वो सक्सेस मिल जाएगा जिसके लिए मैं इतना परेशान होती हूँ, तो मैं अल्लाह ताला के करीब होने का मेरा ये जरिया है. तो when you have a salah mindset, you are thinking about salah even when you're not praying salah. This is what mindfulness is all about. When you actually start praying namaz, so now this will require training, that you start off very slowly.
एक साइकोलॉजी में हम एक इंटरवेंशन यूज करते हैं उन लोगों के साथ, स्पेशली बच्चों के साथ जो बहुत एंग्शियस होते हैं। एंग्शियस का मतलब ये, देयर ऑलवेज इन अ हरी, जल्दी में, कब ये भी काम हो जाए वो भी हो जाए, हम ये भी कर लें, एक जगह टिक ही नहीं बैठे। हम उनके लिए एक इंटरवेंशन यूज करते हैं व्हिच इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ गेम, एंड वी टेल देम वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम एंड लेट्स सी हु इज द वन हु इज एबल टू डू दिस एक्टिविटी इन द मोस्ट स्लोएस्ट पॉसिबल वे। रेस कराएंगे, और रेस एक एग्जांपल है, रेस करवाएंगे और कहेंगे ये देखते हैं कि सबसे आहिस्ता कौन यहाँ भाग सकता है। कंपटीशन करते हैं, गेम खेलते हैं और देखते हैं सबसे आहिस्ता कौन ये वाला काम कर सकता है। तो हम उनको क्या कर रहे होते हैं, बच्चों को रीट्रेन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमें अपने आप को रीट्रेन करना होगा। आज मैं देखती हूँ मैं कितनी आहिस्ता से जो है या कितनी स्लोली मैं अपनी नमाज पढ़ सकती हूँ। अच्छा, क्या होगा, आपके माइंड में सोचेंगे, आप नमाज शुरू करेंगे एंड एज पर हैबिट आप फिर शायद हो सकता है फिर वापस से अपने नॉर्मल स्पीड पे पढ़ना शुरू करें। During the whole time when we're praying, that's why it is best to indulge ourselves in deep breathing. Deep breathing क्या है? Deep breathing ये that you inhale through your nose and you hold your breath for 3 to 5 seconds and then you exhale through your mouth. तो ये deep breath अगर हम नमाज के दौरान थोड़ी सी भी कर लेंगे, it will automatically cause us to pause and to slow down. So make this your habit from tomorrow. कि अब मैं देखती हूँ कि मैं कितनी आहिस्ता नमाज पढ़ सकती हूँ। बचपन से तो हमारे साथ ये वाली स्ट्रैटेजी होती है ना, देखते हैं कौन कितना जल्दी ये काम कर लेगा, देखते हैं कौन कितना जल्दी भाग सकता है, देखते हैं कौन कितना जल्दी ये वाली चीज कर सकेगा। अब इसको स्ट्रैटेजी को चेंज करें, नमाज के लिए देखती हूँ मैं कितना आहिस्ता मैं नमाज पढ़ सकती हूँ, एंड देन यू मेक एफर्ट्स टू डू इट। एंड वंस यू आर प्रेइंग, मेक श्योर that you recite those verses or those ayats of the Quran for which you know the meaning. और जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि जब मैं ये पढ़ रही हूँ तो मुझे इसका मीनिंग समझ आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे उनके वर्ड्स का नहीं मीनिंग पता, तो अब आपके लिए ये वाला वक्त है कि आप जाएं और आप उसको रीड करें। या आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता कि जो हम नमाज पढ़ते हैं और हम जब फॉर एग्जाम्पल अत्तहियात पढ़ते हैं या सूरह फातिहा पढ़ते हैं या हम अल्लाहु अकबर कहते हैं या हम सना पढ़ते हैं, तो उसकी ट्रांसलेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है। इफ यू थिंक ये ऐसा नहीं है तो you go and you read up on it so that you are aware of what you are doing when you are praying namaz, right? So are all of you with me? कौन सी इसमें से स्ट्रैटेजी है जो आपको लगता है कि आपके लिए ज्यादा वर्क कर सकती है? Out of the 5 that we've talked about, any one strategy that you mention that you can mention which you feel can relate with you. Okay, अपने आप से compete करें कि मैं कितनी आराम से या मैं कितनी स्लोली मैं नमाज पढ़ सकती हूँ। ठीक है, anybody else? Okay, जो सलाद माइंडसेट वाली चीज है ना, वो भी मैं आप लोग को बहुत इंकरेज करूंगी कि डू ट्राई दिस आउट एज वेल। Maybe put a reminder on your phone. I need to have a mindset of salah at this time or namaz at this time, right? Because this is also something which will be beneficial inshallah. Mindfulness thoda hum dekh lete hain just before we end the session because in the previous slide I mentioned mindful salah, right? तो अब देखिए mindful एक होता है जिसके अंदर we're constantly thinking about things which are happening, और आज दिन में ये हुआ और कल ये हुआ और परसों ये हुआ, और एक होता है mindful, the word which is written on the right. That is basically where we are able to be in that moment and see what is happening then and there. तो जब हम mindful salah की बात करते हैं, हम कहते हैं कि rather than thinking about everything that has happened in the day or everything that has to happen, we think about what is happening right now. And that is how
we end up becoming mindful in our salah. Mindful कह लें आप उसको psychology में, और अरबी और उर्दू में हम उसको कहते हैं having khushu in our salah. Mindful salah के साथ साथ, you know, and just ending on this note, we also need to be mindful Muslims. And who are mindful Muslims? They are the ones who are able to remember their goal, their objective, or their intention for being in this dunya, which is that we have been sent to worship Allah Ta'ala. उसको माइंड में रखते हुए हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स हो which will make us more mindful. दुआ, making as much dua as possible. जिक्र, आपने जाते वक्त आप कम्यूट में जिक्र कर लें, आप कहीं कहीं वेटिंग टाइम पीरियड है वहां पे जिक्र कर लें, जो मुंह में आपके जिक्र का वर्ड है आप उसको स्टार्ट कर दें. Quran की recitation. So yes, one thing that can be added to our normal daily busy routines is a portion of Quran. And of course contemplation and fikr, जो कि मैं आपको कह रही थी ना कि सलाह mindset होना, कि सोचना, रिफ्लेक्ट करना, देखना चीजों को किस तरीके से हमारी लाइफ किस तरीके से फॉर्म हुई हुई है around that main reason for why we've been sent down on this earth. So this brings us to the end of today's talk. Wa akhiru da'wana